Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Student Hub. Today we are going to discuss cell organelles in detail. Cell organelles like mitochondria, plastids, endoplasmic reticulum, ribosomes, lysosomes, vacuole, Golgi body, centrosome. Out of these, plastids are present in the plant cells and centrosomes are only present in the animal cell. In this topic, we will discuss mitochondria and plastids in detail. Let's see diagrammatically these cell organelles. Nucleus is the biggest of all cell organelles. Endoplasmic reticulum, mainly attached with the nucleus. Golgi apparatus, mitochondria, associated power called the powerhouse of the cell. Centrosome, lysosome, ribosome. Now let's start with the mitochondria. Mitochondria, this is the diagram of the mitochondria. See, the important point is that this mitochondria, it has two membranes. One is inner membrane and another is outer membrane. Both the membranes resemble plasma membrane. It has its own DNA. This is very important. Ribosomes, granules, these are the granules here. Inner membrane space, the space between the two membranes, that is outer membrane and the inner membrane is known as the inner membrane, intermembrane space. Matrix present in the mitochondria. It has ATP synthase and particles. These ATP synthase particles are also known as F0. These are also known as F0F1 particles. F0F1 particles or oxysomes. ATP generation, ATP formation takes place in ATP synthase particles. You have to remember this when the food gets digested in the stomach and finally reach to the cell. Actually, from the cell it reached to the mitochondria, and here is the F0F1 particle or F0F1 complex, ATP synthase particle. In these ATP synthase particles, energy is generated from the glucose molecule, and here ATPs are formed. Now let's see some more information about the mitochondria. First, it was seen by the Kolliker. These are rod shaped. Actually, this is derived from the word mitro means thread and chondria means granules. Both its membranes resemble a plasma membrane. I have already told it has two membranes. One is outer membrane and another is inner membrane. Inner membrane has the foldings. You can see these foldings here. This is the outer membrane. Inner membrane contains oxysomes. The inner membrane is very important because I have already told you that this contains the oxysomes or F0F1 complex. Here it is ATP synthase particle. These ATP synthase particles are oxysomes or F0F1 complex. And what is its function? It generates the ATP. You have to remember that during aerobic respiration, 38 ATP molecules are formed. 38 ATP molecules are formed from one glucose molecule. 38 ATPs are formed from one glucose molecule during aerobic respiration, and as it generates the energy for the cell, that's why it's known as the powerhouse of the cell. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell because it has the ability, it uses the glucose and converts it into the ATP. That's why it's known as the powerhouse of the cell. See the another, it's the semi-autonomous. This is semi-autonomous organelle. Semi-autonomous means कि बहुत सारी चीज़ें ये खुद ही बनाता है. सपोज इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, अपने राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं,
क्लियर। बहुत सारे प्रोटीन इसे खुद ही बनाता है, अगर इसको चाहिए ये एक्सटर्नल सोर्स से नहीं लाता है, साइटोप्लाज्म से इसको लाने की ज़रूरत नहीं है, इसको साइटोप्लाज्म से लाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारी चीज़ें ये खुद ही बनाता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर। और डीएनए जो होता है, डीएनए की मदद से ये डुप्लीकेशन करता है, कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन। अगर इसको एक माइटोकॉन्ड्रिया को अगर रेप्लिकेट करना होगा, डुप्लीकेशन करनी होगी, 1 से 2 बनाने होंगे, तो डीएनए की मदद से ये खुद कर सकता है। दैट मीन्स कि बहुत ही कम चीज़ें ये बाहर से मंगवाता है और बहुत सारी चीज़ें ये खुद प्रोड्यूस करता है। दैट्स वाई द नेम सेमी ऑटोनोमस बॉडी। क्लियर, ये आपको याद रखना है। देयर में बी few to 1000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। क्लियर। एक माइटोकॉन्ड्रिया में, एक सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक इंसेक्ट फ्लाइट मसल सेल, इट हैज़ 5000 माइटोकॉन्ड्रिया। दैट मीन्स कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हर एक सेल में पाए जाते हैं। क्लियर। फिर से एक रिवाइज करते हैं इसका। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, दीज आर टाइनी रॉड शेप्ड, ये देखिए आप, ये रॉड शेप्ड रहते हैं, रॉड शेप्ड cell organelles present in the cytoplasm. These are found in all cells, provide energy for all the activities of the cell. यही से एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है। सेल रेस्पिरेशन इसी में होती है। कहाँ पे होती है सेल रेस्पिरेशन? इन एटीपी सिंथेस में। क्लियर। और वहाँ से 38 एटीपीज आर जनरेटेड फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। और इनका नंबर वेरी कर सकता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। और इंसेक्ट मसल सेल की बात करें तो 5000 माइटोकॉन्ड्रिया। और दिस आर सेमी ऑटोनोमस बॉडीज। तो दिस वाज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में आपको, प्लास्टिड्स आर द सेल ऑर्गेनेल्स। प्लास्टिड्स ये होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये देखिए, ये 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। वन इज लीकोप्लास्टिस and chromoplastis. अब देखिए, नाम से ही पता चलता है, लीकोप्लास्टिस का मतलब होता है ये होते हैं, लीको मीन्स कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता है, इनका कोई कलर नहीं होता है। क्लियर। अब ये जो क्रोमोप्लास्टिस होते हैं, क्रोमो, ये कलर, नाम से ही पता चलता है, क्रोमो मीन्स कलर्ड, ये होते हैं कलर्ड। क्लियर। ये क्रोमोप्लास्ट्स पता है कहाँ होते हैं? ये होते हैं फ्लावर्स में, होते हैं। फ्लावर्स का जो कलर होता है ना, वो इनमें डिफरेंट, अगर पिंक कलर होता है किसी का, येलो कलर होता है किसी का, टोमेटो का रेड कलर होता है, फ्रूट्स का, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, ठीक है, इनमें यही होते हैं क्रोमोप्लास्ट्स। ये कलर इम्पार्ट करते हैं इन फ्लावर्स को, ये ताकि ये फ्लावर्स अट्रैक्ट कर पाए इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। अब आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी है कि क्रोमोप्लास्ट्स जो होते हैं, अगर इन क्रोमोप्लास्ट्स में क्लोरोफिल अगर होगा, इनमें क्लोरोफिल, अगर इनमें क्लोरोफिल होगा, तो वो क्लोरोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल होगा उनको हम क्लोरोप्लास्ट्स कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स, उनको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट्स हम कहते हैं उनको। क्लियर। दैट मीन्स कि क्लोरोप्लास्ट्स आर क्रोमोप्लास्ट्स विच हैव क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम। ये जो क्रोमोप्लास्ट्स होते हैं, आपको याद रखना है, क्रोमोप्लास्ट्स ज़्यादातर होते हैं वहाँ पे जहाँ पर जो है दोज पार्ट्स विच आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट, वहीं पर ये होते हैं। क्लियर। और ये जो यहाँ पर आप जो ग्रीनरी आपको ना दिख रही है बाहर से, जो लीव्स होते हैं, लीव्स में होते हैं, उनका कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट, ग्रीन कलर, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लियर। दैट्स बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स में होता है क्लोरोफिल, और उन्हीं की वजह से होता है ग्रीन कलर, जो आपको ग्रीन टिंट दिख रही है वहाँ से। चलिए अब क्लोरोप्लास्ट्स को डिस्कस करते हैं। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ये आपको जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कॉइनस जैसी, ये ठीक है, इनको कहते हैं थैलाकॉइड्स। क्लियर। ये बहुत सारे यहाँ पर पाइल अप हुए हैं, दैट्स नोन एज अ ग्राना। क्लियर। और यहाँ पर देखिए इन्हीं में हो रही है, यहीं पर हो रही है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, यहाँ पर हो रही है। दिस द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डिटेल्ड स्ट्रक्चर आप 11th क्लास में पढ़ोगे कि किस पार्ट का क्या रोल है, यहाँ से क्या है, बाकी चीज़ें क्या है। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट इज एंड इसकी मतलब शेप क्या है। अब देखिए प्लांट सेल,
प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। तो यहाँ पर आप देखिए थैलाकॉइड्स जो मैंने आपको अभी बताया, दिस इज द थैलाकॉइड जो आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पर भी ये भी थैलाकॉइड्स, ये सब थैलाकॉइड्स ही, इनका भी अपना एक डीएनए होता है, ये देखिए यहाँ पे क्लियर डीएनए होता है इनका, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये डीएनए। और ये ग्राना, जब ये थैलाकॉइड्स, बहुत सारे थैलाकॉइड्स मिल जाते हैं आपस में तो ग्राना बनता है, ग्रानम या ग्राना इनको हम कहते हैं। यह है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस यानी इसके भी दो मेम्ब्रेन्स हैं, वन इज इनर मेम्ब्रेन एंड अनदर इज आउटर मेम्ब्रेन। ये है आउटर मेम्ब्रेन यहाँ से, ये है इनर मेम्ब्रेन यहाँ से, और जो स्पेस है इन दो के दरमियान दैट इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ट्रॉमा हियर। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो थैलाकॉइड्स होते हैं, थैलाकॉइड्स में ही होते हैं, ये जो थैलाकॉइड्स होते हैं इन्हीं में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल दैट मीन्स कि ये जो क्लोरोफिल होता है यहीं पर होता है। अब जब लाइट पड़ेगी, जो लाइट पड़ेगी वो कहाँ आ जाएगी, डायरेक्टली इसी पे आ जाएगी। कहाँ पे, थैलाकॉइड्स में, थैलाकॉइड्स में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है ये यूज़ हो जाएगा, इनको कहते हैं रॉ मटेरियल्स, क्लियर। ये दोनों आ जाएंगे कहाँ पे, इन्हीं थैलाकॉइड्स में। और यहाँ से क्या आएगा, लाइट आ जाएगी सन से, ये जो लाइट आ जाएगी सन से जो लाइट आ जाएगी वो कहाँ पड़ेगी, सन से जो लाइट आ जाएगी वो यहाँ पर थैलाकॉइड्स में। यहाँ से H2O और कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली पहुँचेंगे यहाँ पे, क्लियर। तो क्या विद यहाँ पर जो क्लोरोफिल है ये ट्रैप करेगा और ये सारा कुछ जो यहाँ पर अब रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करेगा C6H12O6 में, दैट इज़ यहाँ पर आपका बन जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दैट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर ये आपको बन जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम फिर से हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को। देखिए यहाँ पर जो ये हैं सेलुलर एनर्जी का अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो प्लांट्स होता है, प्लांट की सेल मैंने बाहर निकाली है यहाँ पर, प्लांट की सेल। और प्लांट की सेल में ये एक सेल ऑर्गेनल होता है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, वो हमने यहाँ पर अब यहाँ पर जो लीफ है यहाँ से हमने सेल निकाली, सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, वो हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ से वाटर, एटमॉस्फेयर से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ये देखिए अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ से आता है और यहाँ से सनलाइट आती है, सनलाइट इस पर पड़ जाती है, क्लियर। और ये सारी चीज़ें जो रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में C6H12O6 और क्या निकलता है, ऑक्सीजन, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो एनिमल सेल्स होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, प्लांट्स में। रेस्पिरेशन यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होती है। प्लांट्स में दोनों फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन भी होती है, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है एनिमल सेल्स में, यहाँ पर सिर्फ रेस्पिरेशन होती है। तो अब देखिए यहाँ से हमने एक सेल निकाली है, एक एनिमल से हमने एक सेल निकाली है, क्लियर। एक इंसेक्ट से हमने सेल निकाली है। तो यहाँ पर आप देखिए इस सेल में क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स, हमने एक निकाला यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, मैंने आपको अभी बोला, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज आता है इसके अंदर, क्लियर। और फाइनली पहुंचता है कहाँ, F0 F1 पार्टिकल्स के पास या ऑक्सीसोम्स के पास, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन आया इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हुई, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन एंड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम ट्रैप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। और निकलता क्या है यहाँ से, बाई प्रोडक्ट्स, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट इस्तेमाल करता है। अब देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को आपके लिए जानना। माइटोकॉन्ड्रिया ये जो यहाँ से निकल रहा है ये इस यूज़ कर रहा है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया से निकल रहा है क्लोरोप्लास्ट यूज़ कर रहा है। दैट मीन्स कि बोथ और इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। दिस इज हाउ दिस यूनिवर्स इज रनिंग। ये आपको देखना है। अब हम डिफरेंसेस देखते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, क्लियर। देखिए अब यहाँ पर पिगमेंट्स नहीं होते हैं, दैट मीन्स क्या यहाँ पर पिगमेंट्स होंगे, मैंने आपको अभी बोला कि यहाँ पर क्लोरोफिल होता है पिगमेंट, क्लियर। इसके बगैर भी बहुत सारे पिगमेंट यहाँ पर, इसमें क्लोरोप्लास्ट में यही क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो और जो बाकी प्लास्टिस हैं, ल्यूकोप्लास्ट, उनमें नहीं होता है, और जो क्रोमोप्लास्ट्स होते हैं उनमें कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं उसके बगैर। ये कंज्यूम करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। मैंने ये भी बोला आपको कि डायग्राम से आपको पता चलेगा कि ग्लूकोज
फाइनली कहाँ पहुँचता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ से एनर्जी निकलती है। ये कंज्यूम करता है और ये प्रोड्यूस करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करता है। किन से प्रोड्यूस करता है? रॉ मटेरियल से, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से। ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। कहाँ से वो निकलता है? ग्लूकोज से। जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये देखिए C6H12O6 से निकलता है CO2 और H2O। अब यहाँ देखिए ये यूज़ करता है CO2 और H2O को एज रॉ मटेरियल्स टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन दो को मिला के ग्लूकोज बनता है। अब यहाँ यूज़ ऑक्सीजन, दैट मीन्स कि ये रिलीज करेगा। अपोजिट फंक्शंस है इनकी। देखिए फंक्शंस ऑल द टाइम यहाँ पर, क्योंकि ओनली फंक्शंस ओनली इन सनलाइट। जब लाइट होगी तो क्लोरोफिल ट्रैप करेगा लाइट, क्लियर, सनलाइट, लाइट एनर्जी को यूज़ करेगा। तो इन द डार्क, तो यहाँ पर तो क्लोरोफिल तो ट्रैप नहीं कर पाता है उस टाइम सनलाइट, क्लियर। उस टाइम और एक रिएक्शन होती है दैट इज नोन एज डार्क रिएक्शन। और ड्यूरिंग प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वहाँ पर लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस होते हैं, वन इज लाइट फेज एंड अनदर इज डार्क फेज। ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे डिटेल में। फंक्शंस ऑल द टाइम, क्योंकि एनर्जी हर एक पार्ट को चाहिए, हर एक सेल को कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए। दैट इज वाई कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऑल द टाइम फंक्शन करना है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि दैट मीन्स कि जो सेल है वो डिपेंड है माइटोकॉन्ड्रिया पे, यानी इन टर्न वी ऑल डिपेंडेंट ऑन द माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए डू नॉट ट्रैप सनलाइट, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स ही नहीं है। जब पिगमेंट्स नहीं है तो ट्रैप नहीं कर पाएगा सनलाइट को। ट्रैप्स लाइट, क्यों करता है ट्रैप लाइट? बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल की वजह से। अगर क्लोरोफिल आप यहाँ से रिमूव करोगे ना तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया ही जैसी, मतलब ना ये ट्रैप नहीं कर पाएगा फिर लाइट। देखो आपके एक पार्टिकल की, एक पिगमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। आर स्मॉलर इन साइज 1 to 4 माइक्रोमीटर्स, इनका साइज होता है बहुत कम 1 to 4। और यहाँ का आर माइक्रो का मतलब होता है यहाँ पर जो मैंने माइक्रोमीटर लिखा 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻6 मीटर। यो इनका साइज होता है 4 to 10 माइक्रोमीटर, क्लियर। यह है माइक्रोमीटर। इनका होता है 4 to 10 माइक्रो मीन्स 10⁻4 to 6। It was a difference between mitochondria and chloroplast. I hope you have understood.